इकबाल मेरी हुई थी फिल्म और उसके बाद मैं उनकी वो पार्टी में गया था और मैंने देखा वहाँ पे गुड बॉय बैड बॉय, अपना सपना मनी मनी, ये सारी फिल्में उन्होंने अनाउंस की थी एंड आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ एनी वन। मैं कभी भी ज़्यादा पार्टीज़ में नहीं गया कि पार्टीज़ में जाके काम मिलेगा या अपने बारे में ज़्यादा कभी मार्केटिंग नहीं की, बट दैट इज़ द वे आई एम। फिल्म के ऑडिशन के लिए गया था और वहाँ पे मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया ये बोल के कि नहीं यार तेरी इमेज थोड़ी सीरियस है, पता नहीं लोग तुझे कॉमेडी में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। टुडे आई एम पार्ट ऑफ द गोलमाल टीम। You know, back then, doing a regional TV show and then coming to mainstream Bollywood, was it difficult? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एज अ हीरो हिंदी फिल्मों में आऊँगा। इवन इफ इट इज आई एम नॉट द फर्स्ट चॉइस, इफ आई एम द सेकंड चॉइस, ऑल दोज फिल्म्स वर्कड। बट वन थिंग दैट चेंज्ड इज आई गेस जो हम फैमिली को मैं थोड़ा ग्रांटेड ले रहा था इतने साल काम के चक्कर में कि नहीं पहले काम, दैट हैज़ completely changed. अल्लू से मुलाकात हुई। Yeah, I would love to meet him because I'm excited, but जो expectations part 1 ने बना के रखी है, I just hope that we are able to live up to those with part 2 as well. Hello and welcome to Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today I can say I am with one of the most versatile actors of Bollywood, Shreyas Talpade. Hi, hello and welcome to Bollywood Hi, Bubble. Thank you so much. Shreyas, first of all, Love You Shankar Ai and now Kartam Bhuktam. How excited are you in this phase of your career where you have multiple releases, different genres, and you are experimenting, I can say? Oh, yeah, of course. I love to experiment. All my career, technically, if you look at it, I have experimented with something or the other. And right now, as you very rightly mentioned, I am very excited because the biggest happiness that any actor can have is his film releasing, in theaters, especially in today's day and age when everybody is like कि थिएटर में कैसे लोग आएंगे नहीं आएंगे, उसमें if there's a film releasing theatrically, I think that in itself is a huge success. Having said that, I firmly believe that any film that is being made should be for theaters, period. Of course, there are certain films which are being made for OTT, but film should be for theaters. And when you have your films releasing one after the other, whether it is my Marathi film Hi Anokhi Gaat, or Love You Shankar, or Kartam Bhuktam now, or maybe Pushpa, or Kapkapi, or another South film Ajagrat, whatever, I'm obviously going to be very happy, and I would want all of them to work at the box office because honestly, that is what you expect. Yeah. When you're doing a film, you're not doing any film ki ye nahi chalegi isliye you don't do it, right? Yeah. You're doing it because you want the film to work. You want more and more people to see the film. You want the film to become a hit. So that the kind of love and appreciation that you get after that is phenomenal, and you want to experience it over and over again as an actor. So yes, I'm very excited, very happy, and I'm looking forward to Kartam Bhuktam because it has shaped up to be a wonderful, entertaining film. But apart from entertaining, even the subject it is touching, like of karma or the philosophy ki, what goes around comes back. Yeah. As an actor, as a personal person in personal life as well, how much do you believe in this philosophy? It does. It is very, very true because you keep experiencing these things कि आप जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से आपको फल मिलता है। फिर अगर आपने कुछ अच्छा किया होगा तो कुछ अच्छा होगा, कुछ अगर बुरा हो रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ बुरा आपने किया होगा। बट कभी कभी you start questioning because you see certain people doing something wrong and still they are technically successful, and you feel ये कैसे, मतलब इनको कोई सजा नहीं मिलती ये तो गलत कर रहा है फिर भी यार मतलब इसका अच्छा ही हो रहा है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू लुक डीपर इनटू दैट पर्सन्स लाइफ, यू विल रियलाइज हाउ मिजरेबल ही इज। बाहरी दिखावा जो कभी कभी हम इंस्टा पे या फेसबुक पे सोशल मीडिया पे दिखाते हैं ना कि मैं कितना खुश हूँ और मैं कितना ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, अगर असल जिंदगी में आप देखोगे तो वैसा नहीं होता। इट इज ऑल अ परसेप्शन, अ बिल्ड परसेप्शन मेनी अ टाइम्स। सो you know that person, फिर चाहे वो अमीर से अमीर पर इंसान क्यों ना हो, there is something which keeps bothering him, whether it is family or money or some other problems. या गरीब को तो वैसे बेचारे को टेंशन रहती है, बट इवन द रिचेस्ट ऑफ द पर्सन विल हैव सम इश्यूज। सो इवेंचुअली दैट्स द रीजन दे से ना कि डिटैच रहो, कर्म कर और फल की चिंता मत कर। इट इज फॉर दैट रीजन के you just do your work and you move on. That is the best you can do.
बट यू नो श्रेयस, ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी लोग लक पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं ना कि दे फॉरगेट व्हाट हार्ड वर्क इज, राइट? बिकॉज इवेंचुअली दैट गेट्स यू व्हाट यू डिजायर. नो नो ऑफ कोर्स, मतलब दैट इज फूलिश कि सिर्फ लक होगा तो मिलेगा, लक होगा तो नहीं मिलेगा. इट इज फूलिश बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू पुट इन दैट एफर्ट, यू नो. बिकॉज कभी कभी हम अपने देवी देवताओं की कहानियाँ भी जब सुनते हैं तो मतलब प्रभु राम जी हो या कृष्ण जी हो, तो उनको भी जब उन्होंने मानव जन्म लिया तो वो जो ड्यूटी थी वो उनको करनी ही पड़ी, वो सारा काम करना ही पड़ा था. मतलब जस्ट बिकॉज दे वर गॉड्स, दे डिडंट हैव एवरीथिंग ऑन द प्लेटर. मतलब राम जी को तो वनवास वगैरह कितना क्या क्या करना पड़ा, वो लड़ाई करनी पड़ी फाइनली. सो आई गेस दैट इज व्हाट इट टीचेस अस, दैट व्हाटएवर वी हैव टू डू, that is we have to do. There is no escape route from that. जो आपको करना है वो करना है, बट जो लिखा हुआ है वो होगा, यू नो. और वो कैसे होगा, क्या होगा, तो ये फिल्म में भी हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वेदर यू आर अ बिलीवर और अ नॉन बिलीवर, आप एस्ट्रोलॉजी में कितना अपने आप को समर्पित करते हो, आप एडिक्शन तक अगर जाते हो तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, यू नो. बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ प्रीची फिल्म, इट्स अ थ्रिलर. So it's a psychological entertaining thriller. But ये सच्चाई है कि आप जो आपके कर्म आपको करने हैं वो उससे आपको छुटकारा नहीं. बट यू नो श्रेयस, एज एन एक्टर डू यू बिलीव, जैसे हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक सर्वाइवल की बात करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग से ऑलमोस्ट 2 decades, डू यू बिलीव इन द फैक्ट कि लक उतना ही इम्पोर्टेंट भी होता है मे बी टू यू नो स्टे सो लॉन्ग? 100%. You know, 100%. Luck is very important, but luck is not the only factor. It is an important factor, and sometimes you know, it is in your favor. Sometimes it is not. True. And there are phases. You know, like for example, मुझे इकबाल के ऑडिशन के लिए फोन आना, so that in itself was good luck. Yeah. You know, अभी उसका आगे मैं क्या करता हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता हूँ वेदर है. सो मेरे जैसा और भी कई लोगों को फोन आया होगा, कई लोगों ने सोचा होगा कि छोटा रोल है क्या, पता नहीं क्या रोल है, मैं नहीं जाता हूँ, एंड दे डिडंट गो फॉर इट. बट एज लक वुड हैव इट, हम लोग बोलते हैं ना कि आई वेंट देयर, आई वॉज देयर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एंड आई गॉट दी रोल. और वेदर गोलमाल रिटर्न्स की अगर हम बात करें, टुडे आई एम पार्ट ऑफ द गोलमाल टीम, which I wasn't when the first part came. I wasn't a part of it, but as luck would have it, things happened. I was called for it. I loved it, and I became a part of it. तो ऐसा लक इम्पॉर्टेंट है, बट तो लक आप तक वो अपॉर्चुनिटी लाके रख देगी, उसके बाद आप उसका क्या करते हो इज कम्प्लीटली योर कर्मा. यू नो अगेन श्रेयस, अगर मैं बात करूँ कि टुडे अगर आज मैं आपसे पूछती हूँ कि सक्सेस और फेम, व्हाट डज इट मीन टू यू? See, it means a lot. एंड ऐसा अगर कोई कहे ना कि यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता. ओके, बिकॉज अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, यू वांट योर फिल्म टू वर्क. व्हाई डू यू वांट योर फिल्म टू वर्क? यू वांट पीपल टू सी योर वर्क. You want them to appreciate your work. So, and you want the film to be a success, matlab you want yourself also to be successful, right? So success matter करता है, and that is your driving force more than anything. नहीं तो चल रहा है, हाँ ठीक है, मतलब हाँ ये भी फिल्म आई, चलो ये भी कर लेंगे, आगे देखेंगे क्या हो. बट कुछ ना कुछ तो आपका ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, कुछ आपको मोटिवेट करनी चाहिए ये चीज़. सो आई थिंक सक्सेस इज दैट मोटिवेट, यू नो. वेदर आपको मिले नहीं मिले, अगर इस फिल्म में नहीं मिलेगा, यू विल ऑलवेज स्ट्राइव फॉर अनदर वन, देन अनदर वन. और लोग कितने कितने साल करते रहे, जैसे कौन, प्रवीण तांबे फिल्म, अगर प्रवीण तांबे की जर्नी आप देखो तो बेचारा 20 साल लगा रहा, फिर उसे सक्सेस मिला, यू नो, और रिकग्निशन मिला. सो यू नेवर नो कब वो आपको स्ट्राइक होगा, बट यू विल हैव टू कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट. दैट इज योर ड्राइविंग फोर्स एंड मोटिवेटर. जस्ट टॉकिंग अबाउट योर ट्रेजेक्ट्री अगेन, आप पहले मराठी सीरियल्स करते थे, if I'm not wrong. Yeah. Then you stepped in with Iqbal to Bollywood. You know, back then, doing a regional TV show and then coming to mainstream Bollywood, was it difficult? It was very difficult considering I have no filmy connects whatsoever or film family background वैसे कोई था नहीं. तो for someone like me coming from a humble middle class background और मराठी टेलीविज़न करके हिंदी फिल्मों में आना एज अ लीड वाज अ ह्यूज थिंग. एंड मैंने, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं
एज अ हीरो हिंदी फिल्मों में आऊँगा। जब एक्टर बना तब यही था कि अच्छे रोल मिल जाए। इनफैक्ट इकबाल के ऑडिशन के लिए भी जब गया था तब यही मुझसे कहा गया था कि छोटा सा रोल है, बॉलर का रोल है, तो वो उसके लिए ऑडिशन है। तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था, बट जो आपका लिखा हुआ रहता है वो कोई बदल नहीं सकता। वो खाली यू जस्ट नीड टू कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट। बट शी इज ऑल्सो इकबाल की, आपने फिर डोर की, फ्रॉम प्लेइंग अ लीड इन फिल्म्स, देन यू इवन डिड मल्टी हीरो फिल्म्स, उस टाइम ऐसा भी था कि यार इनसिक्योरिटीज होती है एक्टर में एंड ऑल। वर यू एन इनसिक्योर एक्टर व्हेन यू डिड दैट? Insecure, see, when you're young and when you want to prove, you want to do a lot of things. जब मैंने इकबाल डोर की, वही दौर था कि जब बहुत सारी मल्टी स्टारर कॉमेडीज बन रही थी, फिर वो एक गोलमाल हो या धमाल हो या हाउसफुल हो या हे बेबी हो, पेइंग गेस्ट हो, व्हाटएवर, सो यू एज एन एक्टर, मैं एक फिल्म के ऑडिशन के लिए गया था और वहाँ पे मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया ये बोल के कि नहीं यार, तेरी इमेज थोड़ी सीरियस है, तूने इकबाल और डोर जैसी फिल्में की है तो सीरियस इमेज है, पता नहीं लोग तुझे कॉमेडी में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो उस वक्त दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी टू प्रूव टू माई सेल्फ ऑल्सो एंड टू माई ऑडियंस ऑल्सो कि नहीं, मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ। तो और वो दौर ही था, ऑलमोस्ट 2012-2013 तक कई सारी मल्टी स्टारर कॉमेडीज बनी। सो ऑफकोर्स एज एन एक्टर यू डिडंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। आप देखते हो कि अरे अच्छा शर्मन का कास्टिंग हो गया, अच्छा कुणाल का कास्टिंग हो गया, तुषार भी काम कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा रितेश भी वो कर रहा है, ये कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ। सो देन यू स्टार्ट फीलिंग कि भाई मुझे भी कॉमेडी करनी चाहिए, सो ताकि मैं भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाऊँ इन फिल्मों में जो मल्टी स्टारर बन रही है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि हर साल मुक्ता आर्ट सुभाष जी, उनकी कंपनी अक्टूबर में 24 अक्टूबर को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक इवेंट होता था और वो फिल्मों की पूरी लिस्ट अनाउंस करते थे कि अगले साल हम लोग ये फिल्में करने वाले हैं, तो इकबाल मेरी हुई थी फिल्म और उसके बाद मैं उनकी वो पार्टी में गया था और मैंने देखा वहाँ पे गुड बॉय बैड बॉय, अपना सपना मनी मनी, ये सारी फिल्में उन्होंने अनाउंस की थी एंड आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ एनी वन। सो मैंने सोचा कि यार मेरी तो पिक्चर हिट हुई है इकबाल, फिर भी मैं इन फिल्मों में नहीं हूँ, तो कैसे चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बट देन धीरे धीरे चीज़ें started moving, things started changing। अपना सपना में earlier there was some other actor, फिर वो एक्टर के कुछ डेट्स के इश्यूज हो गए और फिर मुझे फ़ोन आ गया कि अच्छा बेटा अपना सपना में एक रोल है, तू कर ले, ऐसे करके चीज़ें बदलती गई। सो थिंग्स चेंज, आई थिंक यू जस्ट हैव टू कीप योर फोकस इन द राइट डायरेक्शन। बट श्रेयस, जब पता चलता था कि ओके कोई और एक्टर है एंड मे बी ही और शी इज नॉट डूइंग, तो मुझे कास्ट किया गया है, बुरा लगता था? सच कहूँ तो पहले ऐसा लगता है कि यार ये मेरे लिए नहीं है, ये कोई और किसी और के लिए लिखा गया था, अब वो नहीं है तो मुझे चांस दे रहे। बट मेरी जो शुरुआत हुई, इनफैक्ट इकबाल से ही ये हुआ था। इकबाल में भी पहले किसी और को सिलेक्ट किया गया था, फिर वो सही नहीं कर रहा था, मतलब नॉट दैट उसके साथ शूटिंग हुई, बट जो प्रैक्टिस चल रही थी उसमें उसका सही से नहीं हो रहा था। सो देन दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर समवन एल्स, ओके, एंड देन ऑडिशन दे के फिर मुझे सिलेक्ट किया गया। बट जब अपना सपना की बात हुई, जब इनफैक्ट डोर ऑल्सो, नगेश अर्लियर वांटेड वन सीनियर एक्टर टू प्ले दैट पार्ट ऑफ बहरूपिया। तो पहले मुझसे नगेश ने कहा था कि गुलपना का हस्बैंड प्ले करेगा या आयशा ताकिया का हस्बैंड प्ले करेगा। सो मैं भी सोच रहा था किसका हस्बैंड प्ले करूँ, पर तब तक चेंज हुआ एंड मुझे कहा कि तू बहरूपिया करेगा। सेम विद अपना सपना मनी मनी, बट बिकॉज सुभाष जी ने ही बोला था तो मैंने कहा अरे सुभाष जी ने बोला है तो चुपचाप जाके करना पड़ेगा। सो आई वेंट एंड आई डिड इट। बट देन आई रियलाइज्ड कि even if it is I'm not the first choice, if I'm the second choice, all those films worked, whether it was Iqbal or Door or Apna Sapna Mani Mani or Welcome to Sajjanpur or Golmaal Returns, all of them worked. तो मैंने कहा what am I complaining about? फिर तो मैं लोगों से पूछने लगा, भाई प्लीज पहले मुझे मत लेना, किसी और को लेना, उसको रिजेक्ट करने दो, फिर मेरे पास आना, पिक्चर हिट हो जाएगी। सो आई थिंक इट्स जस्ट द परसेप्शन, कैसे फिर आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है। But as an actor, what validates you? Like audience का positive response या box office collection? Because like आपने पहले में ही mention किया कि आज भी डेट में जहाँ फिल्म्स थिएटर में ही आना बड़ी बात है,
पहले कैसे मल्टीपल फिल्म्स आती थी, देयर वर क्लैशेस, बैक टू बैक रिलीजेस, आपने वो दौर भी देखा है, राइट? Yeah. सो इफ आई आस्क यू टुडे व्हाट वैलिडेट्स यू? Honestly, as an actor, audience response is the most important thing for me. But for my producer to do one more film with me, Yeah. that box office is also equally important. मतलब कई बार ऐसे होता है कि आपको लोग बोलते हैं कि बहुत बढ़िया फिल्म थी, बट अगर वो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली हाँ, तो आपका प्रोड्यूसर को ऐसा लगता है कि यार मैं फिर पैसे कैसे डालूं, True. यू नो, बिकॉज पता नहीं वापस एक डाले वही नहीं आए, दूसरे डालूंगा आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं. सो आई थिंक दैट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इज ऑल्सो equally important as much as audience reaction is. एंड श्रेयस, डू यू ऑल्सो बिलीव इन द फैक्ट कि आज की डेट में यू नो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बोलो, शोबिज बोलो, इट हैज ऑल बिकम पॉपुलैरिटी ओवर टैलेंट इन टुडेज टाइम? But times are changing. There was a time when yes, we had gone through that phase also, कि talent से ज़्यादा, and sometimes it is frustrating, you know, because you see some very क्या कहते हैं, average performer, you know, and when that performer is getting successful or getting undue adulation, तो आपको लगता है यार काम तो ये बंदा मतलब ठीक ठाक ही कर रहा है, यू नो. तो ये जो इसने परसेप्शन एक क्रिएट किया है ऑफ अ फिनोमिनल एक्टर, ये कुछ गड़बड़ है. बट देन ऑब्वियसली जो फसाड आप करते हो ना, वो कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद फिर वो बारिश होती है, वो सब निकल जाता है, एंड जो असलियत है वो सामने आ जाती है, यू नो. सो दैट इज़ वेयर आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट कीप योर फोकस एंड कीप वर्किंग, जस्ट बी पेशेंट. आज नहीं तो कल वो टाइम चेंज होगा आपका, जो हो रहा है अभी. आज के जनरेशन को अगर आप पूछो तो उनको स्टारडम या बड़े स्टार्स का उनका कोई वैसा अट्रैक्शन नहीं है. Yeah. बड़ा स्टार हो या छोटा एक्टर हो या कोई भी हो, as long as you are entertaining us on screen, that is all that matters, you know. So whether आप किसी के बेटे हो या आप नए कोई बंदे आए हो, you have to entertain us and that is our job. Yeah. अगर वो जॉब हम लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं तो लोग हमें गालियाँ देंगे, as simple. Shreyas, what are your thoughts on paparazzi culture evolving today? I mean, you know, you have seen your co-stars के kids, they are the way they are in limelight and all. You have kept your daughter privacy में, even your wife is not much in limelight. Do you believe कि privacy is a matter of concern in today's time? See, it depends on each person. Yeah. You know, because I like my privacy. I like to keep my family private and exclusive. That is way I am. That has always been my case. मैं कभी भी ज़्यादा पार्टीज़ में नहीं गया कि पार्टीज़ में जाके काम मिलेगा, या अपने बारे में ज़्यादा कभी मार्केटिंग नहीं की. बट दैट इज़ द वे आई एम, यू नो. एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे गणपति बापा आते हैं, एंड जब उस वक्त सबकी आरतियाँ कवर होती थी मीडिया में, तो मैंने भी एक साल कहा था कि हाँ ठीक है आप आके वो कवर कीजिए. बट माई डैड गॉट वेरी अपसेट, यू नो, बिकॉज वो जो एक भगवान की सैंक्टिटी रहती है, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा कि वो डिस्टर्ब हो रहा है मामला. एंड ही वेरी कैटेगोरिकली ही टोल्ड मी कि ये साल तूने बोला है मीडिया को तो लेट देम कम एंड कवर इट, बट अगले साल से मुझे नहीं चलेगा. सो आई रियलाइज दैट यू नो योर फैमिली इज़ नॉट ऑलवेज वेरी कंफर्टेबल विद वॉट यू डू. आप एक एक्टर हो, वो नहीं है. आप बार बार जाके मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उनको शायद नहीं अच्छा लगता. तो वो आई वॉन्टेड टू ऑलवेज कीप इट वेरी प्राइवेट, एंड दैट्स द वे दे ऑल्सो लाइक इट, बिकॉज वो जब बाहर घूमने जाते हैं दे वॉन्ट टू बी देमसेल्व्स. दे डोंट वांट टू बी बॉम्बार्डेड कि अरे यार ये आज यहाँ गई वहाँ गई. सेम विद माई डॉटर, अभी तो बहुत ही छोटी है, यू नो. लेट हर ग्रो अप, लेट हर स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, उसके बाद देखते हैं. Shreyas, you know, when you dub for a film like Pushpa, आप देख रहे हो कि with बाहुबली, पुष्पा, KGF, there is this pan India trend now, right? Yeah. But do you see our Bollywood films getting the same recognition down south? They will at some point in time. देखो हमारे यहाँ भी हमारे सैटेलाइट चैनल्स पे उनकी फिल्में इतने साल डब होके आ रही थी और हम उसे देख रहे थे, तभी जाके एक ऑडियंस बना और तभी जाके आज हम उनका ये सक्सेस देख रहे हैं. इट इज़ नॉट ओवरनाइट
यू नो मतलब धीरे धीरे करके हमारे साइकी में वो फिल्में आई, हमने देखी, कभी कभी मजाक भी उड़ाया उन फिल्मों का कि कैसे यार बहुत लाउड होते हैं वगैरह वगैरह। बट हैविंग सेड दैट, उन्होंने अपना एक धीरे धीरे करके मार्केट सेटअप किया, एंड फिर आज उनकी फिल्में जब आती है तो हमें वो एलियन नहीं लगती। हमें वो ऐसा लगता है नहीं, ये तो हम देखते आए हैं। सो इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन फॉर देम, फॉर अस, बिकॉज हमारी फिल्में वहाँ कभी डब होके गई नहीं उनके चैनल्स पे, या हमने कभी डब करके हमारी फिल्में वहाँ रिलीज़ नहीं की। सो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, बट टुडे एट द रेट थिंग्स आर चेंजिंग, वो उनको अगर 10 साल लगे तो हम वो 3 साल में अब कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें पैन इंडिया फिल्में रिलीज करनी होगी ताकि उन्हें भी हमारी फिल्मों की आदत हो जाए। टॉकिंग अबाउट पुष्पा 2 अगेन, अल्लू से मुलाकात हुई, एंड हाउ एक्साइटेड आर यू अगेन टू गो इन दैट कैरेक्टर? सो मुलाकात तो नहीं हुई है, आई वुड लव टू मीट हिम someday, but I'm very excited because obviously after the huge success of Pushpa, the part 2, जो हमारी बातें कभी प्रोडक्शन से वगैरह होती रहती है, so they are also very excited, and the scale at which it is being made is also phenomenal. So yes, it's going to be a huge responsibility again. Of course I'm excited, but जो expectations part 1 ने बना के रखी है, I just hope that we are able to live up to those with part 2 as well. Shreyas, you, like हमने family की बात की, you recently went through a very tough phase when it came to your health, right? Yeah. But it was not only you who suffered, obviously आपकी family, the kind of response your fans and your co-stars reacted, when you see everything around you now and you reflect back, what is that one learning? Second, do you feel कि actors आजकल गुड लुकिंग होने के चक्कर में या कमिटमेंट्स के चक्कर में इतने प्रेशर में आ गए कि हेल्थ निग्लेक्ट हो गई है? एक्चुअली गुड लुक्स के चक्कर में या कमिटमेंट, मैं कहूँगा कमिटमेंट के चक्कर में थोड़ी सी चीज़ें हम लोग कभी कभी हेल्थ को थोड़ा ग्रांटेड लेके करते हैं, बट दिस व्हाट हैपेंड वाज प्रीटी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज ये तो मुझे भी नहीं लगा था, बिकॉज I thought I was taking care of myself and my health and everything, but ये इतना suddenly ऐसे कुछ हो गया, and also it is a very post COVID phenomena. पोस्ट कोविड जो हमारे अंदर क्या क्या बदला हुआ है, अब वो कोविड से हुआ है या वैक्सीन से हुआ है हम नहीं जानते, बट काफ़ी सारी चीज़ें बदली है, सो वो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सब लोग हम लोग उस चीज़ पे ध्यान दें, जो चेकअप्स वगैरह कर सकते हैं जितना हमारे हाथ में है एटलीस्ट उतना हम लोग करें और हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें। बट वन थिंग दैट चेंज्ड इज, आई गेस, जो हम फैमिली को मैं थोड़ा ग्रांटेड ले रहा था इतने साल काम के चक्कर में कि नहीं पहले काम, दैट हैज़ completely changed. So now family and my health comes first and then my work. So before moving to a fun segment, प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, वेलकम 3 तो आ रही है, ऑडियंस ऑलरेडी एक्साइटेड है, गोलमाल 5 कब आ रही है? आई जस्ट होप कि अगले साल आए। हमें ऐसा लग रहा है कि अभी सिंघम की शूट कर रहे हैं रोहित, तो उसके बाद आई थिंक ही माइट स्टार्ट विद गोलमाल 5, एंड वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, वी ऑल्सो वॉन्ट टू डू द सेम मस्ती अगेन, बिकॉज अभी 7 साल हो गए गोलमाल अगेन को, तो नाउ इट्स टाइम। एक्चुअली अगर कोविड नहीं होता तो शायद हम थोड़े पहले ही आ गए होते, बट उसके वजह से शायद थोड़ा डिले हुआ है, but yes, I am also looking forward to doing Golmaal 5 again. Thank you. Hi, this is Shreyas Sarpade and you're watching me on Bollywood Bubble.